A very good morning to one and all present here. On behalf of AIMTech Business Solutions Private Limited, I, Ms. Palak Jain, would like to extend a warm welcome to all of you for joining us today in this informative webinar on financial statements for non-corporate entities. At AIMTech, we are happy to announce the achievement of about 2,000 plus happy customers, and we are committed to empowering businesses and accountants by providing clarity on compliance and financial reporting using TallyPrime. As we know, filing financial statements is not just a regulatory requirement, but it is a vital step in maintaining transparency, ensuring legal compliance, and making sound business decisions. While corporate entities often have dedicated teams and advisors, non-corporate entities like sole proprietors, partnership firms, and HUFs often face challenges in understanding the compliance obligations, for which TallyPrime now supports an Excel-based auto mapping tool which simplifies a lot of your work. So without even taking a minute of yours, let's go through the workflow. I'll just share my screen and would like to get a confirmation whether my screen is visible. Yeah, okay. I have shared my screen and I hope Tally screen is visible to all of us. Okay. So now first we'll be beginning with how are we going to get this tool enabled in our TallyPrime and how do we use it and what kind of reports are generated out of this. Okay. So जैसे कि आप सभी को पता है NCE stands for non-corporate entities. Okay. Now नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज के लिए आईसीएआई की गाइडेंस नोट्स के अकॉर्डिंग अभी जो है उनके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करना मैंडेटरी हो गया है, जिसी को ध्यान में रखते हुए टैली प्राइम हैज कम अप विद एन एक्सेल बेस्ड टूल जिसमें आप अपने टैली का ही डेटा एक्सपोर्ट करके उसे मैप कर सकते हैं, जिसमें भी यू गेट 3 क्लासिफिकेशंस, दैट इज द मेन ग्रुप्स जो होते हैं उनकी मैपिंग आपको ऑटोमेटिकली टैली के डेटा के अकॉर्डिंग मैप करके मिल जाती है. वी विल सी ऑल ऑफ दिस थिंग्स into our tally prime so that we get a better understanding of this. Okay, what are we first supposed to do? We are supposed to go to our tally portal. हम यहाँ पे जाएंगे गूगल क्रोम पे, विल बी सर्चिंग फॉर टैली सॉल्यूशंस. तो ये जो आपका टैली पोर्टल है ये आपके सामने विजिबल होगा. ओके, I'll just keep this aside तो आप लोगों को क्लियर अंडरस्टैंडिंग आ जाए. यस, सो दिस इज आवर टैली पोर्टल. ठीक है, यहाँ पे आकर के व्हेन यू गो टू कस्टमर हब, हियर इज एन ऑप्शन फॉर कस्टमर हब. यहाँ पे अगर आप जाकर के चेक करते हैं तो यू गेट एन ऑप्शन फॉर स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज. ओके, नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू? आपको यहाँ पे ये जो एरो मार्क दिख रहा है, यू आर सपोज टू क्लिक ऑन दिस एरो टू एनेबल दिस एड ऑन इनटू आवर टैली प्राइम. ओके, when you click on this, it will take you to that screen where you are supposed to enter your tally serial number so that this tool gets enabled into your tally as well. अब ये जो टैली सीरियल नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड करने वाले हैं ये आपको कहाँ से मिलेगा वो भी मैं आपको गाइड कर देती हूँ. प्लस इसके लिए एक कंडीशन है जो आपको याद रखनी है और जो फुलफिल हुई होनी चाहिए. दैट कंडीशन इज कि आपका टैली प्राइम रिलीज 6 और अबव होना चाहिए. If you are in release 6 or above above release 6, then there is no problem. In case if you are not, you will have to upgrade your tally prime to release 6 to enable this feature into your tally prime. Okay, इसी के साथ साथ एक छोटी सी और रिक्वायरमेंट होती है which is with concerns with your MS Excel. आपका MS Excel जो होता है वो भी 2016 होना चाहिए so that you can use all of the features of this mapping tool. Okay, यहाँ पे ये जो कंडीशन मैंने बताई है दिस इज ऑल्सो मेंशन्ड ओवर हियर, यू कैन टेक अ रीडिंग ऑफ द सेम. ठीक है, ये कंडीशन फुलफिल हो जाने के बाद हियर यू आर गोइंग टू प्रोवाइड योर सीरियल नंबर एंड यू विल क्लिक ऑन चेक एलिजिबिलिटी. And since I have already compiled this tool onto my tally prime, it is giving कि ये tool already enable हो चुका है. In your case, it will be providing you a message of congratulations. वो screen भी हम यहाँ पे display कर देते हैं. Just a moment. Here it is. I'll just share the screenshot कि वो कैसा screen आता है. Yes, here we go. This is for financial statements for non-corporate entities.
या हियर इफ यू कुड चेक, जैसे हमने बात की कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, तो हमने देखा कि नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज को लेकर के जो रूल पास हुआ है अकॉर्डिंग टू आईसीएआई गाइडलाइंस, कि उन्हें अभी इट इज इफेक्टिव फॉर देम एज वेल कि दे आर सपोज टू फाइल देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, सो ये इसका डीप डिस्कशन के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि जून 22 में दे हैड कम विद एन ऑब्जेक्टिव of having this financial statements for non-corporate entities, but at that time it was just a technical guide जिसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना था कि people should get to know that applicability of accounting standards are now begin for NCEs as well. Plus, the recommended formats of these financial statements were shared with us. Okay, then in August 23 एक guidance note release हुआ था which had the objective of preparation and standardization of financial statements as well as improved quality of and completeness of financial reporting. So the detailed discussion was on financial reporting and completeness of the same. Okay, then coming to April 2024, guidance note effective हो गया था and the technical guide जो issue किया था that was surfaced. Okay, now coming to what is NCE and financial documents. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि कंपनीज एंड एलएलपीज जिनके पास में अपना एक डेडिकेटेड फॉर्मेट है, अपना फाइलिंग का एक प्रोसीजर है, they are not going to get disturbed, they are going to follow the same process which they used to. ये जो चीजें हम सीख रहे हैं, this is for non corporate entities such as partnership firms, sole proprietors and HUFs, Hindu undivided families. इसी के साथ साथ we also have considered the societies, charitable trusts as well. But today's session is dedicatedly for sole proprietors, partnership firms, and HUFs. Okay. Now coming to the part that what kind of documents are going to be included in this financial statements for non-corporate entities. So for this, we are going to consider balance sheet, profit and loss, cash flow statement, and notes to accounts. For your kind information, cash flow statement is not yet mandatory, so it is not considered while preparation of this tool. So for cash flow statement, workings are not yet done into this, but a ready balance sheet according to the format given by ICAI, a ready P&L same according to the format given by ICAI, plus the notes of accounts which are prepared by CAs manually or through the help of some other softwares that are going to be prepared readily with this Excel tool. You do not need to make any extra workings. आपको कोई भी अपना extra time इस पे spend करने की जरूरत नहीं है. Okay? Now ये है जो ट्रेडिशनल फॉर्मेट दिया गया था एंड द फॉर्मेट एज पर द गाइडेंस नोट. ठीक है, ये आपका बैलेंस शीट का फॉर्मेट है और ये जो फॉर्मेट है दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट. इसको हम इन डिटेल देखने ही वाले हैं, सो दैट इज व्हाई आई एम नॉट शोकेसिंग मच ऑन इट. अभी सिर्फ आपको एक फॉर्मेट दिखा करके वी आर प्रोसीडिंग फर्दर. ठीक है, नाउ गोइंग टू स्कोप फॉर स्मार्ट एफएस. एफएस स्टैंड्स फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सो स्मार्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनसीई टूल. सो हमने किसको कंसीडर किया है वो तो हमने डिस्कस कर ही लिया, दैट वी आर लुकिंग इनटू सोल प्रोप्राइटर्स, वी आर लुकिंग इनटू पार्टनरशिप फर्म्स एज वेल एज एचयूएफ. अब इसके स्टेप क्या है, स्टेप्स भी हम इन डिटेल देखने ही वाले हैं. आई एम गोइंग टू शो दिस थिंग प्रैक्टिकली, सो जस्ट शोकेसिंग इट फॉर अ मिनट सो दैट आप समझ सके कि व्हाट स्टेप्स आर वी गोइंग टू फॉलो फर्दर. अभी जो राइट हैंड साइड का पार्ट है, इट नीड्स मच ऑफ योर अटेंशन, which is stating कि ये जो Excel tool हम यूज करने वाले हैं इसमें what kind of sheets do we have? Yes, so we have many sheets. अंदर बहुत सारे spreadsheets है इस एक Excel sheet के अंदर, where the first sheet begins with readme. Readme sheet is going to be very very much important for all the chartered accountants, those who are going to look forward to have to file the financial statements, to get the financial statements ready of such non-corporate entities. तो आपको कंसीडर करना है कि रीडमी जो फाइल है, रीडमी जो शीट है is going to be very much important for all of us. Why? Because it contains all the help videos which you would require in future, और जो भी documents है इसके बारे में consisting of all the features and all the things into NCE जो भी हमने इस टूल के अंदर एनेबल किया हुआ है उसके रिगार्डिंग जितनी भी चीजें हैं उसका हेल्प कंटेंट जो है दैट इज गिवन इनटू रीडमी, प्लस अ डीप अंडरस्टैंडिंग
एक एक्चुअल प्रोसेस कैसे फॉलो करना है इन केस इफ यू गेट स्टक एनीवेयर आगे के प्रोसेस में, तो हाउ डू यू रिजॉल्व इट, हाउ डू यू गो, हाउ डू यू कम आउट ऑफ इट, इसके बारे में अगर आपको जानना है तो यू कैन रेफर दी रीडमी शीट. ओके, इसको इन डिटेल हम देख लेंगे. विल ऑल्सो हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम इन टू द प्रैक्टिकल पार्ट. लेट मी जस्ट गो थ्रू दिस. यस, तो ये मैंने आप सभी को पहले ही बता दिया है. हाउ डू वी एनेबल एनसीई इन आर टैली प्राइम लाइसेंस. ओके, सो टैली प्राइम लाइसेंस को एनेबल करने के लिए स्टेप्स हमने बताए थे. फर्स्ट वी आर गोइंग टू टैली पोर्टल, उसके बाद में देयर वी आर गोइंग इनटू कस्टमर हब and there we are getting that option for smart financial statements for non-corporates. Okay, when you click on that arrow, it takes you to the screen where you begin the actual step to enable this add-on, where the first step is to provide your serial number. There, after providing your serial number, when you provide the serial number, your eligibility is checked. Eligibility check means your tally should be of release 6 or above and your Excel should be 2016 or above. Okay, then you will be getting an OTP on your admin ID. जो आपने email ID वहाँ पे serial number पे जो compile किया हुआ है, on that same email ID you will be getting an OTP. वो OTP आप यहाँ पे देंगे and this add-on will be directly given onto your on your Tally Prime license. Okay, now going to add-on will be downloaded in Tally folder. वो कहाँ पे download होगा? I'll be showing that thing practically. Now ये चीज हमने देख लिया है screen already that we gave our serial number over here and we checked the eligibility. So you can read after entering the serial number, click on check eligibility, which is done, and then add-on will be compiled on your serial number. Now what you need to do is next step is to update your Tally Prime license. अब बात कर लेते हैं कि हमने पहले ये देखा था कि if we are not aware कि हमारा serial number क्या है, so how do we get that information? उसके लिए यू कैन सी लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में टैली प्राइम के बाजू में योर गोल्ड और सिल्वर, आपका लाइसेंस कौन से टाइप का है, वेदर इट इज अ सिंगल यूजर और अ मल्टी यूजर, वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा स्टेटिंग सिल्वर और गोल्ड. ओके, व्हेन यू क्लिक ऑन दैट आपके लाइसेंस की पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने डिस्प्ले हो जाती है, वेयर यू गेट योर सीरियल नंबर, और यही सीरियल नंबर आप कॉपी करके वहां पे डाल देंगे इनटू योर टैली पोर्टल. वहां पे डालने के बाद चेक एलिजिबिलिटी हो जाएगा. एलिजिबिलिटी चेक करने के बाद में यू विल बी क्लिकिंग ओवर योर टू अपडेट द लाइसेंस. हमने वहां पे जो पोर्टल का काम है वो तो हमने कर दिया है, बट नाउ हियर इनटू आवर टैली प्राइम वी नीड टू अपडेट द लाइसेंस. हाउ डू वी डू दैट? आपको F1 में जाना है. F1 में जाने के बाद में यू विल बी गोइंग टू सेटिंग्स. सेटिंग्स में यू विल बी गोइंग टू लाइसेंस. लाइसेंस के अंदर फर्स्ट ऑप्शन इज टू मैनेज लाइसेंस, वेयर यू गेट द ऑप्शन F5 टू अपडेट योर लाइसेंस. अपडेट करने के लिए यू आर सपोज टू गिव योर tally.net ID, जो अभी आपने जहां से OTP कलेक्ट किया था, द सेम ईमेल ID विच इज कंपाइल्ड ऑन योर सीरियल नंबर, वो ईमेल ID यहाँ पे देंगे आप, एंड द tally.net पासवर्ड विच यू हैव सेट वो आप यहाँ पे दे देंगे. आफ्टर डूइंग दिस आपका लाइसेंस जो है वो अपडेट हो जाएगा, और वो एड ऑन जो है वो कहाँ पे एनेबल होकर के दिखेगा वो भी हम चेक कर लेते हैं. फर्स्ट विल कम बैक टू दिस स्क्रीन कि हमने लाइसेंस अपडेट कर दिया है. अकॉर्डिंगली टू चेक द एड ऑन लोडेड, where can we check कि हमारा add-on load हुआ है या नहीं? For that you will be going to Tally again. You will be pressing F1. F1 प्रेस करने के बाद जैसे आप देख सकते हैं कि Tally plugins में हमें जाना है. So we are going to Tally plugins. यहाँ पे हम आ गए हैं and here you can see कि financial statements for NCE load हो गया है. Okay? To bring into your notice, ये particular tool के दो versions release हो चुके हैं, version 1.0 and version 1.1. But now when you are getting this loaded onto your serial number, आपको जो latest version है वही मिलेगा, which is inclusive of the features of both the versions, version 1.1 as well as version 1.0. ठीक है, उसमें क्या नया आया है वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्जन 1.0 में क्या नहीं था, विच इज एडेड इनटू 1.1 एंड विच इज द लेटेस्ट वर्जन. तो आप जब भी इसे एनेबल करते हैं यू आर गेटिंग द लेटेस्ट वर्जन ओनली. ठीक है, गोइंग बैक हियर. ठीक है, हमने ये लोड कर लिया है, वो तो चेक कर लिया है. नाउ कमिंग टू इसके बेनिफिट्स क्या है, ये पहले हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं, एंड देन टू समराइज विल कम बैक टू दिस पीपीटी. नाउ कमिंग बैक टू आवर टैली स्क्रीन, इफ यू कुड चेक, यहाँ पे आपने क्या किया था, लाइसेंस एनेबल लाइसेंस अपडेट कर दिया था, और आपको ये टूल जो है, प्लगइन जो है वो एनेबल होकर के दिख गई थी. नाउ अब ये आपने एनेबल तो कर लिया, अब मुझे बताइए हाउ डू वी यूज इट, इसको यूज कैसे करना है, वो प्रोसेस तो अभी तक इसमें स्टार्ट नहीं हुआ है. दिस वाज जस्ट दी
रेडी पार्ट जो हमने कर लिया कि हाँ यहाँ से हमें एनेबल करना है, एंड वी गॉट द टूल एड ऑन इनटू आवर टैली प्राइम. नाउ इफ यू चेक, अगर मैं एक्सपोर्ट करने जाती हूँ तो हियर ऑल्ट ई एक्सपोर्ट मैंने प्रेस किया है ऑन माय गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन. सो आई एम नॉट गेटिंग एनी ऑप्शन फॉर एनसीई. जो डिफॉल्ट ऑप्शंस थे वही मेरे सामने आए हैं. सो प्लीज नोट, व्हेन यू वांट टू export documents or data for the non-corporate entities, at that time you will have to go to the financial statements only. Financial statements से मेरा मतलब है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रायल बैलेंस. तो इन तीनों में से कोई भी डॉक्यूमेंट पे या कोई भी टैब पे आप जा सकते हैं. व्हेन यू क्लिक, जैसे मैंने अभी आपके सामने बैलेंस शीट ओपन की है, आई एम प्रेसिंग ऑल्ट ई, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं आई एम गेटिंग एन एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर एनसीई. अब यहाँ पे जब मैं क्लिक कर देती हूँ, जो हमने डिस्कशन किया कि वर्जन 1.0 भी था और 1.1 भी है, तो वो पॉइंट्स यहीं पे ऐड हुए हैं. जैसे आप देख सकते हैं एक्सपोर्ट डेटा फॉर करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर. तो आप इस पर्टिकुलर कंपनी से कौन सा डेटा एक्सपोर्ट कर रहे हैं, करंट ईयर का कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का कर रहे हैं, या दोनों कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली यू विल बी सिलेक्टिंग दी ऑप्शन. उसके बाद करंट ईयर की एंड डेट क्या है वो भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे. एंड इन केस आपके क्लाइंट ऐसे हैं जिनके ट्रांजैक्शन ह्यूज लेवल पे होते हैं, वास्ट डेटा है, so they have separated, like they have splitted the companies yearly basis पे, तो उसके लिए you will be enabling this option कि previous year का डेटा एक सेपरेट कंपनी में है, एंड यहाँ पे आप वो प्रीवियस ईयर की कंपनी सिलेक्ट कर लेंगे. बट ये लिस्ट ऑफ कंपनीज में वो कंपनी तब ही विजिबल होगी जब आपने उस कंपनी को पीछे इस स्क्रीन पे लोड किया होगा. जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपनी लोडेड है, दैट इज एबीसी एंटरप्राइजेस बीआर. Now, in case if I have maintained separate data for another separate data for the last year, previous year, तो आपको यहाँ पे जाकर के उस कंपनी को भी ओपन करना है. Only if I open the another company, then only it will be visible into that screen. In our case, दोनों ही year का डेटा सेम कंपनी में है, so that is why I am not going to enable that option. But आप उसे yes करके वहां से सिलेक्ट कर सकते हैं. नाउ कमिंग बैक टू कि हाँ हमने यहाँ से एक्सपोर्ट के लिए हम गए, कॉन्फ़िगर में गए, वी डिड दिस पार्ट, वी डिड दिस. अगर सेपरेट है तो यस करके यहाँ पे हमने वो कंपनी सिलेक्ट कर ली, दैट ऑल्सो वी डिड. ठीक है. नाउ हियर जो वर्जन 1.0 में नहीं था और जो इसमें ऐड हुआ है 1.1 में, आर दीज ऑप्शंस. ओके, ये जो ऑप्शंस आप देख पा रहे हैं जिसको आपको यस नो करने के लिए चांस मिला है यहाँ पे, अकॉर्डिंगली ये आपके डेटा पे रिफ्लेक्ट होगा. सो वी आर सपोज टू रीड इट प्रॉपरली एंड मेक अ यस और अ नो. Okay, export ledgers with zero balances and no transactions in trial balance. Many times we have complaints like जहाँ पे zero balances है या जो transactions है ही नहीं, ऐसे particular ledgers ना visible हो, so that it makes it easy for us to work. ठीक है. तो ऐसे टाइम पे if we are considering कि कोई भी ledger ऐसी है जिसमें zero balance है या कोई transaction नहीं है whole of the year के लिए, तो आप इसको export ना करें या करें, उसका ऑप्शन हमें दिया गया है. If we do yes, it is going to export. If we do no, it won't. ठीक है. Now coming to export trade receivables and trade payables bill wise. In case if you have maintained against references and new references, इस तरह से हमने किया है, on account भी है, advances भी है, and you want that same thing to reflect into your tool. If you want कि trade receivables और payables का bill wise जो sheet हम देख पाते हैं into tally, वो भी export हो, तो you have to press this option as yes. तो वो भी export हो जाएगा. Then coming to export stock details item wise और ledger. Stock details जो है वो आप item wise या ledger wise अगर चाहते हैं कि export हो, तो आपको इस option को भी yes करना है. उसी में if you want कि zero balances के stock items और ledgers जो है वो ignore हो जाए, exclude हो जाए, should not be a part of our document, तो आप इसे yes करेंगे, or else you will be keeping it as a no. ये कुछ configuration settings है जो आपको करनी है. ये करने के बाद में यू विल बी कमिंग ओवर हियर टू एक्सपोर्ट. अब जब आप इसे एक्सपोर्ट करते हैं, सिंस आई हैव ऑलरेडी एक्सपोर्टेड इट, ये मुझे ओवरराइड के लिए पूछ रहा है. फॉर योर केस इट वोंट कम. ठीक है, वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट के लिए पूछेगा, यू विल बी प्रेसिंग अ यस और ये एक्सपोर्ट हो जाएगा. नाउ वेयर आर यू गोइंग टू गेट दिस डॉक्यूमेंट? ये जो एक्सपोर्ट हुआ है XML, ये कहाँ मिलेगा आपको? आपके टैली प्राइम के लोकेशन पे. आई विल शो यू हाउ टू एक्सेस दैट. हियर आई विल मिनिमाइज दिस स्क्रीन. यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप डायरेक्टली डेस्कटॉप पे जाइए एंड हियर जो आपका टैली प्राइम का आइकन है उस पर राइट क्लिक करके प्रेस ओपन फाइल लोकेशन. ओपन फाइल लोकेशन पे जैसे ही आप एंटर करते हैं,
तो यहाँ पे आपको वो XML भी मिल जाता है, और वो जो टूल एड ऑन हुआ है उससे जो एक्सेल ऑटो मैपिंग टूल जनरेट होगा वो भी यहीं पे आपको मिलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, प्लीज नोट, आपको टैली के फाइल लोकेशन को ओपन करके हियर यू विल बी गेटिंग अ फोल्डर कॉल्ड ऐप रिसोर्सेज। ठीक है, जब आप ऐप रिसोर्सेज पे क्लिक करते हैं हियर यू विल बी गेटिंग प्लगइन्स। ठीक है, प्लगइन्स के अंदर जब आप ड्रिल डाउन करते हैं और चेक करते हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर NCE। ओके, नाउ व्हेन यू ओपन दिस तो यहाँ पे वर्जन 1.0 एंड 1.1 की कुछ जिप्ड फाइल्स जनरेट हुई है, जिसपे व्हेन यू राइट क्लिक, हियर आई गो, वर्जन 1.1 पे मैंने राइट क्लिक किया है एंड आई एक्सट्रैक्टेड इट ओवर हियर। जब मैं इसे एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ तो मेरे सामने एक एक्सेल जनरेट हो रही है जिसमें हम सारा मैपिंग करने वाले हैं। हमारा सारा काम जो है वो इसी एक्सेल के थ्रू होने वाला है। तो अब हमने बात कर ली है कि उस टूल को एनेबल अपने लाइसेंस पे कैसे करना है, अपने टैली डेटा को कैसे एक्सपोर्ट करना है, प्लस एक्सपोर्ट किया हुआ डेटा कौन से एक्सेल में इंपोर्ट होगा, और जो ऑटो मैपिंग का एक्सेल टूल है वो कौन सा है। ठीक है, यहां तक की प्रोसेस हमने डिस्कस कर ली है एंड आई होप इट इज क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू। ठीक है, ये हो जाने के बाद जस्ट अ मोमेंट, जस्ट चेक। ठीक, एवरीथिंग इज फाइन ओवर हियर। हाँ, ठीक, minimize this। यस, अभी ये एक्सेल टूल जनरेट हो गया है। नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्चुअल प्रोसेस कि हमने इंपोर्ट कैसे करना है डेटा को और इस पे काम कैसे करना है। ठीक है, मैंने डबल क्लिक किया है तो ये जो मैक्रो एनेबल्ड वर्कशीट है ये ओपन होगी आपके सामने। यस, ये ओपन होने के बाद में एनेबल कंटेंट का जो ऑप्शन ऊपर दिख रहा है आपको, इसको आपको एनेबल कर लेना है। नाउ कमिंग टू, जैसे हमने बात की थी कि वी आर हैविंग रीडमी शीट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आप सभी से शेयर भी किया था। तो उसमें जैसे हमने बात की थी कि आपको रिलीज के नोट्स मिल जाते हैं, यू गेट दी हेल्प कंटेंट ओवर हियर, यू गेट दी हेल्प वीडियोज ओवर हियर, प्लस यू विल ऑल्सो बी गेटिंग दी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। you directly click on that particular column और it will take you directly to that screen, उससे relevant जो content है वहां पे it will take you। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं how do we use this template। अभी तो I am going to share in detail explanation of this, but in case in future if you want to refer तो आप इस डॉक्यूमेंट को रेफर कर सकते हैं जहाँ पे हाउ टू यूज दिस टेम्पलेट के बारे में डिस्कस किया गया है। आपको एक्सेल टेम्पलेट को ओपन करना है, डेटा इंपोर्ट करना है, हाउ डू यू सेव द मैप, how do you clear the data, how do you copy the mapping, all the options are going to be discussed in detail। हम सिर्फ एक ओवरव्यू यहाँ पे इस स्क्रीन पे ले रहे हैं कि व्हाट द रीडमी फाइल गिव्स यू। ठीक है, नीचे अगर हम आ जाते हैं और हाउ टू यूज दिस टेम्पलेट के बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस भी यहाँ पे दी गई है। जो आपकी क्वेरीज होंगी विथ रिगार्ड्स टू कि हमारे क्लाइंट का डेटा बहुत हैवी है, सो वी वांट दैट डेटा टू बी रिफ्लेक्टेड इनटू हंड्रेड्स, या स्केल फैक्टर की हम बात कर लें, इफ वी वांट कि हंड्रेड्स में रिफ्लेक्ट हो, थाउजेंड्स में हो, क्रोर्स में हो, वो सारी चीजें अगर आपको चाहिए तो उसके लिए यू आर प्रोवाइडेड विद स्केल फैक्टर। फिर आपको फाइनेंशियल, योर क्वेरी मस्ट बी कि मेरे एक नहीं मैम, आई हैव 10 क्लाइंट्स, आई हैव 100 क्लाइंट्स, हाउ डू आई यूज द सेम मैपिंग टूल फॉर ऑल ऑफ देम। तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि ऑलवेज व्हेन यू एक्सट्रैक्ट इट, जैसे हमने एक्सट्रैक्ट किया था यहाँ से इस फोल्डर से, यस, यहाँ से जब आप एक्सट्रैक्ट कर रहे थे, every time a fresh Excel copy is generated over here, you just copy it from here and paste it into your client की data का folder कि हाँ this data is for this particular client A, client B। तो client A के अंदर ले जाकर के एक Excel को आप रख दीजिए, client B में same process repeat कर दीजिए। इस तरह से what will happen, you will be getting the same Excel for each and every client with a fresh copy। जहाँ पे आप import करेंगे तो उस particular client का data ही दिखेगा जिसका डेटा आपने इंपोर्ट किया हो। ठीक है, इसी तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती है, जो आपकी क्वेरीज है उसके आंसर्स विल बी इनटू योर बेस्ट प्रैक्टिसेस का पार्ट। ठीक है, नाउ व्हेन वी ड्रिल डाउन कंपोनेंट्स अगर आप देखते हैं इस टेम्पलेट के, तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बटन इस शीट के अंदर प्रोवाइड किए गए हैं
उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलेगा, एंड हाउ डू यू यूज इट उसका इंस्ट्रक्शंस भी यहीं पे मिलेगा. सो नाउ विल जस्ट टेक दिस कि हमारा पहला शीट है बेसिक इन्फो. लाइक रीडमी और इंडेक्स हो जाने के बाद वी हैव बेसिक इन्फो. तो बेसिक इन्फो के अंदर वी आर प्रोवाइडेड विद सम बटन्स. यहाँ पे आप देख सकते हैं जो ब्लू में हाईलाइटेड टेक्स्ट है, ये आपको ब्लू में इसलिए हाईलाइट करके दिया है बिकॉज दिस इज अ बटन विच कैन बी यूज्ड बाय यू. हाउ डू वी यूज इट? तो आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू इंडेक्स का बटन आप तब यूज करेंगे व्हेन यू वांट टू नेविगेट. सी यहाँ पे अगर आपने नोट किया हो तो नीचे बहुत सारी शीट्स है which makes it difficult for us to navigate from one place to another. अगर मैं अभी बैलेंस शीट पे हूँ एंड आई वांट टू सी माय ट्रायल बैलेंस करंट ईयर का, या फिर स्टॉक ऑफ द करंट ईयर और ट्रेड रिसीवेबल्स ऑफ द करंट ईयर. सो सी ट्रायल बैलेंस तो बाजू में ही है, बट आफ्टर सो मेनी नोट्स आई विल हैव टू गो लाइक दिस फॉर माय ट्रेड रिसीवेबल्स एंड स्टॉक. ओके, सो व्हाट डू वी डू एट दिस टाइम? ये जो आपको गो टू का बटन दिख रहा है, गो टू इंडेक्स, दिस विल डायरेक्टली ब्रिंग यू टू इंडेक्स, एंड फ्रॉम इंडेक्स जिस भी शीट पे आप जाना चाहें. सी आई वांट टू गो टू ट्रायल बैलेंस करंट ईयर, मैंने यहाँ पे ला करके क्लिक किया एंड दिस इज डायरेक्टली टेकन मी टू दैट ट्रायल बैलेंस का शीट. ओके, हियर अगेन यू आर प्रोवाइडेड विद द सेम बटन, यू कैन शिफ्ट एंड चेक इट ओवर हियर. आप गो टू पे क्लिक कीजिए, इट इज अगेन ब्रिंगिंग यू टू द इंडेक्स. सो फॉर नेविगेशन पर्पस यू आर प्रोवाइडेड विद द गो टू इंडेक्स टूल. ओके, जो कि आपके रीडमी के शीट के अंदर दे दिया गया है. ठीक है, देन कमिंग टू सिलेक्ट एक्सएमएल टू इंपोर्ट बटन. तो जैसे कि हमने बात की थी कि एक्सएमएल डेटा हम इंपोर्ट तो कर एक्सपोर्ट तो कर चुके हैं टैली से. हाउ डू वी इंपोर्ट इट, वेयर आर वी गोइंग टू इंपोर्ट इट? तो इंपोर्ट आप इस शीट के अंदर ही करेंगे. एंड हाउ डू यू डू, उसके लिए ये बटन आपको दिया है विच इज इनटू योर बेसिक इन्फो का वर्कशीट. यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि ये वाला बटन इज इनटू योर बेसिक इन्फो वाला वर्कशीट. सो यू विल बी गोइंग टू बेसिक इन्फो एंड हियर आप उस टूल को एक्सरसाइज कर पाएंगे. ठीक है, नाउ अगेन गोइंग बैक टू readme document. Here you have also got the button called as save mapping. This is a very important tool, very much important tool, और इसका requirement would be basically to all of you. When are we going to use save mapping? See, many times what happens, आपने ये data import कर लिया, right? After importing you have mapped all the things. समझो अगर if you are having hundreds of ledgers, तो आपकी सारे की सारी mapping complete हो गई है, and now you get to know from the client that they have made some alterations into the tally data. कुछ addition किया है, कुछ deletions किए हैं, कुछ और transactions add हुए हैं, या anything, any changes are made into your tally data. Now tell me, for a single or two changes, can we bear a loss of hundreds things which we have already mapped, 100 transactions which already are mapped? You cannot, right? So at that particular time we will be using this option of save mapping. आप क्या करेंगे, डायरेक्टली आई शो यू द टूल. सी, इट इज इनटू योर बेसिक इन्फो. तो बेसिक इन्फो में यहाँ पे आप ये बटन देख पा रहे हैं, राइट हैंड साइड में एच कॉलम को हाईलाइट कर देती हूँ जहाँ पे आपको ये दिख जाएगा. व्हेन यू क्लिक ऑन सेव मैपिंग, इट विल सेव द थिंग्स व्हिच यू हैव ऑलरेडी मैप्ड. वो चीजों को ये क्या करेगा, इट विल सेव इट, एंड देन व्हेन यू री इम्पोर्ट द डेटा, टैली डेटा, तो जितनी चीजें न्यू एड ऑन हुई है, जो मैप नहीं हुई है, only that many things are left out for you to be mapped. Okay, बाकी सारी चीजें as it is mapped रहेगी. ठीक है, now coming back to readme again, clear data का ऑप्शन भी आपको दिया गया है. in case if you want to if you have done multiple worksheets आपके पास में आपने यूज की है, and you want कि उसका जो मैपिंग आपने किया है वो क्लियर हो जाए, you want to use it again, if you want to use it for some another person, another client, तो वो टाइम पे यू कैन यूज द ऑप्शन टू क्लियर डेटा. ठीक है, आप इसी डेटा को क्लियर करके एंड देन इंपोर्ट कर सकते हैं अनदर डेटा या फिर द न्यू डेटा ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लाइंट. ठीक है, सो दीज आर सम ऑप्शंस. ऐसे सिर्फ बेसिक इन्फो शीट में नहीं, बट मेनी अदर शीट्स आप देख सकते हैं. ट्रायल बैलेंस में भी इस तरह के ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, बट इसको हम जब उस स्क्रीन पे हम जाएंगे तभी इसे समझेंगे. ठीक है, नाउ कमिंग टू इंडेक्स का यूज क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि दिस इज फॉर नेविगेशन पर्पस. जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो नेविगेट होकर के इट विल डायरेक्टली टेक यू टू दैट पर्टिकुलर नोट. ठीक है, ये चीज है इंडेक्स. नाउ कमिंग टू बेसिक इन्फो. अभी अगर आप देख रहे हैं तो होल ऑफ माई शीट इज ब्लैंक, नथिंग इज फिल्ड, बट आई डू नॉट वांट टू वेस्ट माय टाइम सिटिंग एंटरिंग ऑल द डेटा. व्हाट वुड आई डू? I would click on select XML file,
और इन केस अगर मैंने टैली डेटा प्रॉपर मेंटेन किया है तो ही ये ऑप्शन यूज हो पाएगा, क्योंकि टैली के अंदर वो डेटा फीड होगा तभी टैली वुड टेक अ रीडिंग ऑफ द सेम, राइट। तो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक दैट पाथ जहां पे आपने टैली ओपन किया था, वो वाले पाथ पे यू विल बी गोइंग, और वही पाथ यू विल बी गिविंग इट ओवर हियर। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो वी हैव केप्ट आवर डेटा ओवर हियर, राइट। ये मैंने वो XML फाइल ली जो मैंने एक्सपोर्ट की थी टैली से, ठीक है। नाउ हियर सी यू कैन सी डेटा इंपोर्ट इज इन प्रोग्रेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडर मैपिंग इज इन प्रोग्रेस, और अगर आपने नोट किया तो इट हैज गिवन यू द कंफर्मेशन दैट दीज मेनी पर्टिकुलर शीट्स आर मैप्ड सक्सेसफुली इनटू एक्सेल, प्लस जो आपका बेसिक इन्फो का शीट है वो भी मैप हो चुका है। सी यू हैव गॉट द कंपनी नेम, जो डेटा आपने वहां पे दिया था वो मिल गया है, प्लस जो एंटिटी के डिटेल्स आपने कंपनी के अंदर फिल किए हुए थे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल गई है। नाउ वी विल टेक द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज 3 ऑप्शंस, राउंड ऑफ से लेकर के पीपीई ब्लॉक तक के 3 ऑप्शंस जो है इसका अंडरस्टैंडिंग हमें लेना है। एंड ये जो डिटेल्स है ये आपको फिल करने हैं ताकि आपने जो नोट्स टू अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं और जो बैलेंस शीट प्रिपेयर की है उसके नीचे ये सिग्नेटरी डिटेल्स रिफ्लेक्ट हो जाए। हियर आपको जो एंटिटी सिग्नेटरीज है उनके नाम, उनका डेजिग्नेशन और उनकी प्लेस एंड साइनिंग डेट को मेंशन करना है। जो भी ऑडिट फर्म का नाम है वो यहाँ पे आएगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट का नाम आपको यहाँ नहीं देना है, वो नीचे देना है इनटू द नेम ऑफ साइनिंग ऑडिटर, ठीक है। यहाँ पे ऑडिट फर्म का नाम आ जाएगा और यहाँ पे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट द वन हु इज साइनिंग द डॉक्यूमेंट्स, वो फाइनेंशियल्स, उनका नाम यहाँ पे आ जाएगा with their designation and their membership numbers and the other relevant details. Okay, now let's understand ये जो 3 options यहाँ पे दिए गए हैं इसका क्या यूज है। कमिंग टू राउंड ऑफ अमाउंट टू नियरेस्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि स्केल फैक्टर का ऑप्शन आप सभी को दिया हुआ है। इफ यू वांट द डेटा टू रिफ्लेक्ट इनटू क्रोर्स, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स, लैक्स, मिलियंस, ऑप्शंस आर प्रोवाइडेड ओवर हियर, यू कैन सिलेक्ट अकॉर्डिंगली। जो भी आप सिलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग होल ऑफ द डेटा विल बी रिफ्लेक्टेड, ठीक है। नाउ कमिंग टू ट्रेड रिसीवेबल्स एंड पेएबल्स, इन केस इफ यू मेंटेन्ड अगेंस्ट रेफरेंसेस, अगेंस्ट रेफरेंस मेंटेन किया है आपने या फिर ऑन अकाउंट या एडवांस पेमेंट्स का सीन अगर इसमें है into the client's data, okay, so at that time what you can do is as per trial balance closing balance की जगह पे you can select the option as per trade receivables or payable sheet। तो यहाँ पे जो डेटा रिफ्लेक्ट होगा, जो बैलेंसेस रिफ्लेक्ट होंगे, that will be taken up from trade receivables and payable sheets, okay। if you want that closing balance is fine, trial balance का closing balance ही रखना है तो you can take that option as well, flexibility is given to both the options, ठीक है। नाउ पीपीई एंड आईए ब्लॉक, यहाँ पे अगर आपको प्रॉपर्टी, इक्विपमेंट्स, ये सारी चीजों का जो टोटल लेना है वो इफ यू वांट कि दैट शुड रिफ्लेक्ट इनटू ग्रॉस या नेट, तो यू आर प्रोवाइडेड विद द ऑप्शंस। आप नेट भी ले सकते हैं, आप ग्रॉस भी ले सकते हैं। इफ यू आर टेकिंग ग्रॉस तो जो ग्रॉस के नोट्स है वो अपडेट होंगे, इफ यू आर टेकिंग नेट तो जो नेट के नोट्स है वो अपडेट होंगे, ठीक है। इसके अलावा इफ देयर आर एनी एडिशंस इनटू द मशीनरीज इन प्रॉपर्टीज एंड इक्विपमेंट्स, तो आप वहां पे जाकर के एडिशन के कॉलम में अमाउंट भी ऐड कर सकते हैं मैन्युअली, एंड डिलीशंस अगर कोई है तो वो भी आप कर सकते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन इफ मेथड्स आर चेंज एंड इफ यू वांट द अमाउंट टू बी चेंज्ड बाय योरसेल्फ तो वो भी आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। नाउ आई एम सिलेक्टिंग नेट ब्लॉक ओवर हियर, ये स्क्रीन को हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है। सो नाउ व्हेन वी गो टू द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से हमने शुरू किया था, तो रीडमी का फाइल हमने अच्छी तरह से डिस्कस कर लिया है, इंडेक्स हमने अच्छी तरह से देख लिया है, प्लस बेसिक इन्फो भी हमने अच्छी तरह से देख लिया है। नाउ वी आर कमिंग टू मैपिंग, हमें जो डेटा है वो मैप कैसे करना है, हाउ डज द टूल मेक्स द बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड नोट्स टू अकाउंट रेडी फॉर अस, वो देखने के लिए प्लीज नोट वी विल ऑलवेज बी बिगिनिंग the trial balance and the mapping from trial balance current year या previous year, okay। ट्रायल बैलेंस से हमें मैपिंग को शुरू करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टैली ने आपके लिए पेरेंट ग्रुप, मेन ग्रुप एंड इन केस अगर टैली में कोई अलग ग्रुप मेंटेन हुआ है फॉर दैट पर्टिकुलर ग्रुप तो वो नाम भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। इन केस अगर उसमें कोई नेचर ऑफ ग्रुप भी अलग मेंटेन हुआ है तो दैट थिंग इज ऑल्सो रिफ्लेक्टिंग इट ओवर हियर। तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली टैली से मैप होकर के आ गई है फ्रॉम योर टैली डेटा, यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग ऑन दिस, ठीक है। Now many a times chartered accountants have the concerns with opening balances and debit credit transactions, तो यहाँ पे आपको opening balances and debit credit transactions values भी मिल जाती है, plus in case if you do not want to refer to the opening balances, you just want the totals of closing balances,
तो आपके सामने वो कॉलम भी यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया गया है. So from A to I, all the columns are already mapped and the data is ready for you. Okay, so you do not need to do anything in this. What you need to do and where you need to do is this J से लेकर के P तक का पार्ट. Okay, here you can see bifurcate balances into current and non-current. In case अगर आपके ये जो आप देख पा रहे हैं borrowings, ये अगर बाइफरकेटेड है इनटू करंट एंड नॉन करंट, तो जो भी वैल्यू है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आपने नोट किया 57,000 है, सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू कि नॉन करंट में मैं इसमें से 50,000 का पार्ट रख देती हूँ. जैसे ही मैंने वहां पे 50,000 एंटर किया, जो एम्बर येलो ऑकर कलर था दैट हैज बीन रिमूव्ड, डिसेबल्ड, और वहां पे आप देख सकते हैं व्हाइट में हो गया है और यहाँ पे जो स्टेटस है वो भी चेंज होंगे. विल मैप विद दिस. सी क्लासिफिकेशन 1, 2 एंड 3, ये जो बेसिक ग्रुपिंग्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग ये तीन जो है ये अपडेट हो गए हैं. ओके, नाउ कमिंग टू क्लासिफिकेशन 4, आपको मैप करना है. हाउ डू वी डू दैट? अगर आपने यहाँ पे नोट किया, आई विल जस्ट टेक यू टू दी कॉलम ए. यहाँ पे देखिए अविनाश कैपिटल अकाउंट. सो एज आई रीड द लेजर नेम आई गेट टू नो कि ये मेरा कैपिटल अकाउंट है. सो हाउ डू आई डू द मैपिंग? यहाँ पे आकर के बैलेंस शीट, लायबिलिटीज एंड ओनर्स कैपिटल अकाउंट, जो अबव ग्रुप्स है वो सारे मैप हो चुके हैं. हेड्स ऑलरेडी मैप्ड है. आपको सिर्फ क्या करना है, उसके इंटरनल अगर अपने कोई ग्रुप्स मेंटेन किए हैं तो वो हमें यहाँ पे सिर्फ जस्टिफाई कर देने हैं. जैसे ओनर्स कैपिटल अकाउंट में दिस इज गोइंग टू बी माई कैपिटल अकाउंट 1. ठीक है, जैसे ही मैंने कैपिटल अकाउंट 1 सिलेक्ट किया, द स्टेटस अनमैप जो यहाँ पे था वो निकल चुका है. इट हैज गॉट मैप्ड. विल ऑल्सो ट्राई फॉर कैपिटल अकाउंट 2. यहाँ पे आप देखेंगे कैपिटल अकाउंट 2 में व्हेन यू क्लिक ऑन कैपिटल अकाउंट 2 तो अनमैप्ड का स्टेटस निकल जाता है और ये मैप हो जाता है. नाउ इसी के साथ साथ जैसे आप मैप कर रहे हैं, आपके नोट्स टू अकाउंट्स भी रेडी होते जा रहे हैं. विल गेट अ चेक ऑन इट. अगर आपने नोट किया तो दिस वाज 40 lakhs, राइट? योर फर्स्ट कैपिटल वाज 40, सेकंड वाज 40 अगेन. सो नाउ विल गो टू नोट्स टू बैलेंस शीट and we'll check. तो यहाँ पे as per 2024 opening balances 40 and 40 is reflected. Okay, ये कैपिटल अकाउंट था इसलिए ये यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ है. अगर ये करंट अकाउंट होता तो ये नीचे यहाँ पे करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाता. ओके, नाउ फॉर नेम ऑफ द पार्टनर एंड प्रोप्राइटर, इफ यू वांट यू कैन मैन्युअली टाइप ऑल्सो, एंड इफ यू वांट कि यहाँ से कॉपी हो जाए डायरेक्टली तो आपको यहाँ पे जाना है. यू विल जस्ट सिलेक्ट कंट्रोल सी. जो आपके बेसिक डिफॉल्ट इसके एक्सेल के फंक्शनैलिटीज है वो एज इट इज है, आप उसे यूज कर सकते हैं. यहाँ पे आपने कंट्रोल वी करके पेस्ट कर दिया है एंड आप देख सकते हैं अविनाश का नाम वहां पे रिफ्लेक्ट हो गया है. ओके, सेम गोज फॉर दी अदर पार्टनर्स एज वेल. ठीक है, नाउ कमिंग ओवर हियर, ये तो चलो दीज वर कैपिटल अकाउंट्स वी डिड. अगर यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे दिस इज अगेन ओनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे हम वापस कैपिटल अकाउंट ले लेते हैं. देन दिस इज अगेन कैपिटल, तो ये हम कैपिटल सिलेक्ट कर लेते हैं. नाउ कमिंग टू रिजर्व्स एंड सरप्लस. रिजर्व्स एंड सरप्लस के अंदर दिस इज कैपिटल रिजर्व. ओके, सो विल चेक कि ड्रॉप डाउन में हमें कैपिटल मिल रहा है. सो यस, अगर आप ड्रॉप डाउन लिस्ट चेक करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व इज गिवन, तो जस्ट सिलेक्टेड. ओके, नाउ कमिंग टू सेकेंड, दिस इज जनरल रिजर्व. ओके, एंड व्हेन यू चेक इट इनटू योर ड्रॉप डाउन, तो ड्रॉप डाउन में यू आर नॉट हैविंग जनरल रिजर्व. एंड इन केस इफ यू डायरेक्टली गो टू योर नोट्स टू अकाउंट, अगर आप यहाँ पे चले जाते हैं नोट्स टू अकाउंट और यहाँ पे जाकर के इफ यू डू कि हाँ मैं यहाँ पे जनरल रिजर्व ऐड कर देता हूँ, तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन, बिकॉज आपको यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि दिस इज अ वार्निंग कि ये जो टूल है दिस इज प्रोटेक्टेड शीट. ये शीट्स जो है ये प्रोटेक्टेड शीट्स है, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे इस टैब में जाकर के कुछ नहीं कर सकते हैं. बट सिंस आपका जो अमाउंट है जनरल रिजर्व का वो बहुत ही हाई वैल्यू अमाउंट है, सो यू वांट कि इट शुड रिफ्लेक्ट इनटू जनरल रिजर्व ओनली. आई डू नॉट वांट टू पुट इट इनटू अदर रिजर्व्स. सो दैट टाइम you will again come to trial balance का sheet and यहाँ पे you are provided with the option to select other reserves and specify nature. अगर आप चेक करेंगे जैसे ही मैं अदर रिजर्व्स को सिलेक्ट करती हूँ मेरा क्लासिफिकेशन 4 तो येलो से व्हाइट हो जाएगा, बट अगेन माय क्लासिफिकेशन 5 विल बिकम येलो बिकॉज सिंस आई हैव गिवन कि अदर रिजर्व मैं स्पेसिफाई करने वाली हूँ तो आई शुड ऑल्सो स्पेसिफाई द नेचर ओवर देयर. सो मैं अदर रिजर्व पे क्लिक करती हूँ. जैसे मैंने आपको बताया था कि क्लासिफिकेशन 4 विल टर्न व्हाइट, वो हो गया है, एंड क्लासिफिकेशन 5 विल कम एज येलो विच इज नॉट येट मैप्ड. तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं जनरल रिजर्व.
ठीक है, आई हैव स्पेसिफाइड जनरल रिजर्व और मैंने एंटर प्रेस कर दिया है, तो मेरा अनमैप का स्टेटस तो निकल गया है. नाउ लेट्स गो टू नोट्स एंड चेक. तो यहाँ पे ये नोट्स अपडेट नहीं हुआ है. सी आई गेव द नेम ओवर देयर, स्टिल इट इज नॉट अपडेटेड. द रीजन बिहाइंड दिस इज यू आर प्रोवाइडेड विद अ बटन टू अपडेट द नोट्स. अगर आप क्लासिफिकेशन 5 में कुछ भी नोट्स देते हैं एंड यू वांट दैट टू रिफ्लेक्ट इनटू योर बैलेंस शीट एंड नोट्स टू अकाउंट एज वेल, तो आपको ये जो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है अपडेट नोट्स विद, ऊपर जो बटन प्रोवाइड किया है इनटू बी पी कॉलम, वहां पे जाकर के अपडेट नोट्स पे आपको क्लिक करना है. एंड देन यू विल बी गेटिंग अ मैसेज एज सच कि डू यू वांट टू अपडेट ऑल द नोट्स. व्हेन यू विल बी प्रेसिंग यस, तो ये सारे ही नोट्स अपडेट होंगे विद इन अ मिनट. इट विल टेक अ मिनट. और यहाँ पे आपको मैसेज आ जाएगा कि ऑल नोट्स अपडेटेड सक्सेसफुली. नाउ व्हेन यू विल बी गोइंग टू बैलेंस शीट एंड नोट्स अगेन, एंड अब अगर आप चेक करते हैं तो आपको जनरल रिजर्व वहां पे मैप करके आ जाता है विथ द अमाउंट. ओके, यस. सो नाउ अगेन गोइंग बैक टू ट्रायल बैलेंस. और अगर आप देखेंगे तो वी केम अप टू अदर रिजर्व और जनरल रिजर्व हमने स्पेसिफाई कर दिया. अब जितनी चीजें आपने मैप नहीं की है वो चीजें आपको यहाँ पे येलो में रिफ्लेक्ट होती रहेंगी. ये जितना भी चीज आप येलो में देख पा रहे हैं दिस इज अनमैप्ड, और यहाँ पे स्टेटस भी आपको मिल रहा है. एज एंड व्हेन यू गो ऑन मैपिंग दिस, ये साथ साथ में आपके डेटा पे भी इफेक्ट होता रहेगा. ओके, सी यू कैन नॉट एंटर एनी वैल्यूज, इसके लिए ये ऐसा आ रहा है. इफ यू आर ट्राइंग कि वहां पे ये अगर आप कुछ ऐड ऑन कर सके तो आप डायरेक्टली टाइप नहीं कर सकते. यू नीड टू सिलेक्ट इट फ्रॉम द ड्रॉप डाउन ओनली कि यस वी वांट टू चेंज द ग्रुप, ये यहाँ से लेना है, ये आपको ड्रॉप डाउन से ही लेना होगा. ठीक है. सो अब हम क्या करते हैं, ये जो चीजें अनमैप्ड है इसको हम फटाफट से मैप कर देते हैं सो दैट हम डेटा को चेक कर पाए कि किस तरह से ये रिफ्लेक्ट होता है. जैसे जैसे आप मैप करते जाएंगे, इफ यू गो बैक टू बैलेंस शीट, आई टेक यू टू बैलेंस शीट. ये देखिए जिस तरह से आप मैप करते जाएंगे ये जो टोटल्स आप देख पा रहे हैं नीचे इनटू येलो कलर्स, ये है ना कम ज्यादा होकर के निल हो जाएगी, नलिफाई हो जाएगी जब तक आप मैप करके इसे कंप्लीट करते हैं. व्हेन यू कंप्लीटली टैली इट आउट, यहाँ से ये सारा अमाउंट निकल जाएगा जो येलो में रिफ्लेक्ट हो रहा है. और अगर अभी आपको चेक करना है कि कौन सी लायबिलिटीज मैप नहीं हुई है, तो यू डायरेक्टली क्लिक ऑन दिस, वो येलो अमाउंट पे आप क्लिक कीजिए, इट विल ब्रिंग यू टू दैट ट्रायल बैलेंस का शीट एंड विल शो यू कि आपकी ये सारी चीजें मैप नहीं हुई है. ओके, सो फटाफट से हम इसे मैप कर लेते हैं, एक अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं फटाफट. विल नॉट गो इनटू टेक्निकल कि ये चीज इसी में जाना है, ग्रुप हम चेक नहीं कर रहे हैं बिकॉज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर ऑलरेडी एक्सपर्ट एट दैट थिंग. वी जस्ट वांट कि ये रिफ्लेक्ट कैसे होता है वो मैं आपको दिखा दूं. तो आई जस्ट हाइड सम कॉलम्स जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये चीजें हम हाइड कर देते हैं सो दैट ये एक ही पेज पे हमें दिख जाए. इवन इफ यू वांट टू फ्रीज ए कॉलम, तो आप जो बेसिक फंक्शनैलिटीज जो एक्सेल की है, डिफॉल्ट फंक्शनैलिटीज लाइक फ्रीज कॉलम, हाइड, अनहाइड, देन डिलीट रोज, ये सारी चीजें आप नॉर्मली जैसे यूज करते हैं वैसे यूज कर सकते हैं. देर आर नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन दैट. ठीक है. नाउ कमिंग टू, अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज लोन फॉर फाइनल लीज. ओके, एंड योर इट इज इनटू बोरोइंग्स. तो मैं यहाँ पे सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड है वो सिलेक्ट कर लेती हूँ. लेट्स टेक की पेबल. ठीक है, विल टेक सिक्योर्ड लोन्स. ठीक है, देन कमिंग टू एनबीएफसी है ये, सो विल टेक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल. एक सेकंड. You can take the option from this drop down. Now to take secured related party, I'll again go to drop down, and since it is related parties, so I'll take the related parties only. Okay, and then coming to this is unsecured loans, तो यहाँ पे जाकर के हम सिलेक्ट कर लेते हैं. This is not from party, this is from bank. We'll be selecting bank over here. Okay, then salary payable है, सो ग्रुपिंग में जाकर के आप सिलेक्ट कर लेंगे यहाँ से सैलरीज पेबल. दिस इज जीएसटी पेबल, सो यहाँ पे आकर के आप जीएसटी पेबल ले लेंगे. अगेन फॉर सी जीएसटी एस जीएसटी इज जीएसटी पेबल. ये हम मैप कर लेते हैं सो दैट हम डेटा में चेक कर पाए वेदर इट इज रिफ्लेक्टिंग और नॉट. टीडीएस ऑन कॉन्ट्रैक्टर्स है. यस,
Now this is for gratuity. So gratuity, अभी हम ले लेते हैं लीव एनकैशमेंट. So this is leave encashment. Then any दोषी, ये मेरी पार्टीज है. हाँ, whether the party is MSME और नॉन MSME वो भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और अकॉर्डिंगली ये आपके ट्रेड रिसीवेबल्स और पेबल्स में रिफ्लेक्ट होंगे. ठीक है. सिंस इट इज नॉन MSME, मैंने नॉन MSME ले लिया है. इफ यू वांट टू कॉपी इट एंड पेस्ट बिलो, वो भी आप कर सकते हैं दिस वे. देन हियर व्हेन वी कम, दिस इज प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस में हम, हाँ, अदर लायबिलिटीज ले लेते हैं. देन कमिंग ओवर हियर, provisions, I took other liabilities. Okay, other liabilities लेकर के here you'll be getting the option. Accordingly you can select. Here is profit and loss, ये select कर लिया है मैंने. देन कमिंग टू, यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि ये जो चीजें हैं और जो आपकी प्रॉपर्टी इक्विपमेंट्स ये सारी चीजें इनकी वैल्यूज रिफ्लेक्ट हो इनटू नेट, तो आप नेट रखिए. इफ यू वांट दैट इट शुड रिफ्लेक्ट इनटू ग्रॉस, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, आप इसे ग्रॉस कर दीजिए यहाँ से. लाइक ये आपने एसेट्स कर दिया एंड देन अच्छा वी हैव गिवन नेट इनटू आवर बेसिक इन्फो शीट, दैट इज व्हाई इट इज रिफ्लेक्टिंग इनटू नेट. अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे ग्रॉस हो, तो आपको अपने बेसिक इन्फो शीट पे आकर के अपडेट करना होगा. यहाँ पे नेट ब्लॉक की जगह पे यू विल हैव टू मेक इट ग्रॉस ब्लॉक, ओनली देन इट विल रिफ्लेक्ट इनटू ग्रॉस वैल्यूज. ठीक है. कमिंग ओवर हियर, दिस इज फर्नीचर एंड फिक्चर्स. तो मैंने फर्नीचर एंड फिक्चर्स ले लिया है. दिस इज लैंड, तो हम लैंड ले लेते हैं यहाँ पे. एडिशनल गोडाउन है, कीपर्स इन्वेस्टमेंट. Okay, this is equity. Then security deposit. Okay, then your, actually this was prepaid expenses. ठीक है. Then we'll check for capital advances. ठीक है. Now coming here, capital advances, secured. ये हम फटाफट से मैप कर लेते हैं. अनसिक्योर्ड है, टेक अनसिक्योर्ड ओवर हियर. ठीक है. देन दिस इज फॉर प्रोविजनल डेट्स जो हमने रिजर्व करके रखा है. डाउटफुल डेट्स, so I'll be selecting doubtful debts over here. Then this is bank. We'll take current accounts over here. Now if you check advanced taxes and ये सारी चीजें भी मैप नहीं है, we'll just फटाफट से मैप this. Yes, income tax है. Assets. Or investment will not take it into deferred tax. I just want to show you the notes how they get updated and how is the balance sheet getting ready. इसलिए मैं फटाफट से इसे just map करके finish off कर रही हूँ. Just give me a minute. This is sales. So again, here we go. Sale of products. This is sale of scraps. Income. This is map. Again, coming to other incomes. This is dividend, to dividend ले लिया. Then this is interest. Let's select interest. This is purchases. Stock and trade. Purchase of raw material. And then this is intangible assets.
amortization, just depreciation. This is intangible, again depreciation. Yes, employee welfare, so employee benefits, and here, okay, so these are staff welfare expenses. Now here, forex gain and loss, so we'll take other profit and loss items. We'll just take payment to auditors. This is insurance. Here is insurance. Payment to auditors. So now we have other expenses. Auditors. And then printing and stationery. So we'll take it into other expenses. I will select over here. Printing and stationery. Then professional fees, again other expenses. To auditors. Remuneration to partners. And the last, traveling expenses. Okay. So here we'll take traveling expenses. Here it is. ठीक है, इस तरह से what we have done, we have just mapped the classifications. Now we are having some options left out over here as well. इसे भी हम मैप कर देते हैं so that we can check कि हमारे डेटा पे ये रिफ्लेक्ट कर रहा है या नहीं. यहाँ पे I did I'll take 18 lakhs over here कि these are my non current. ठीक है, this is not there. Then unsecured terms I'll take 280 over here. Then 1 lakh में से will take 50,000 over here. Then 7 lakh over here. Exceed, yeah, okay. Then cannot see the balances. Actually, we have hidden the closing balance. Just a moment. Here is the closing balances. And that's over here. This is mean when cash is 0. Zero over here. Let those things be into current only. Now yes.
सो वी हैव जस्ट गॉट, वी हैव डन विद द मैपिंग। मैंने ये मैपिंग फटाफट से इसलिए कर लिया है कि आप लोगों को डेटा में ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा वो चीज हम चेक कर लेते हैं। बाकी टेक्निकली सीएस आर वेरी गुड एट दिस थिंग, दे आर एक्सपर्ट्स इनटू इट कि ये कौन से ग्रुप में जाएगा, हाउ द एक्सपेंसेस आर मेड, वो कहाँ पे नॉन करंट में कितना डालना है, करंट में कितना डालना है, ये सारी चीजें आप लोग ऑलरेडी अवेयर है। सो इट शुड नॉट टेक मच मच ऑफ योर टाइम। अब हम डायरेक्टली चेक कर लेते हैं कि हमने ट्रायल बैलेंस को पूरा मैप तो कर लिया है करंट ईयर का। सो लेट्स गो टू बैलेंस शीट एंड चेक। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं अनमैप लायबिलिटी लेजर्स फॉर करंट ईयर जो है वो ब्लैंक हो गई है, सिंस वी हैव ऑलरेडी गॉट द मैपिंग्स डन इनटू आवर ट्रायल बैलेंस, और अकॉर्डिंगली जो अमाउंट्स है वो भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गए हैं। इफ यू कुड चेक, यहाँ पे आप देख सकते हैं लॉन्ग टर्म में हमने जो क्लासिफाई किया नॉन करंट, करंट के अकॉर्डिंग जो बैलेंसेस हमने दिए, अकॉर्डिंग टू दैट जो करंट ईयर है वो पूरा अपडेट हो चुका है। नाउ कमिंग टू, इतना टाइम हमने करंट ईयर के लिए दे करके एवरीथिंग वी हैव डन करेक्टली, now you cannot give same amount of time for the previous year as well. So ये to finish this thing into clicks we are also provided with an option। अगर आप ट्रायल बैलेंस पे ही जाते हैं तो सिंस हमने करंट ईयर के लिए किया है तो हम करंट ईयर के शीट पे आकर के चेक कर रहे हैं कि यस एवरीथिंग इज प्रॉपर ओवर ईयर। नाउ विल बी गोइंग टू प्रीवियस ईयर का शीट विच इज अगेन ब्लैंक एंड अनमैप्ड। सो ऐसे टाइम पे वी आर नॉट गोइंग टू स्पेंड आवर टाइम अगेन इनटू मैपिंग, we will be copying the mapping from current। अगर आप इस बटन पे क्लिक करते हैं कॉपी मैपिंग फ्रॉम करंट ईयर, तो करंट ईयर से जो मैपिंग है वो कॉपी होकर के प्रीवियस ईयर पे आ जाएगी। just the thing you need to do is you need to alter the balances, since balances are not going to remain same for each and every year। तो जो balances है आपके, ये जो करंट एंड नॉन करंट का जो बाइफिकेशन है वो आपको करना होगा। रेस्ट थिंग्स आर गोइंग टू गेट, ये देखिए जब बाकी सारी चीजें जो क्लासिफिकेशन थे दैट गॉट मैप्ड, ठीक है। ओनली द थिंग विच इज लेफ्ट आउट, वी आर लेफ्ट आउट विथ कि आपको ये जो बैलेंसेस है इनको बाइफरकेट करना होगा, सिंस द बैलेंसेस रिमेन डिफरेंट फॉर ईच एंड एवरी ईयर। ठीक है, तो ये चीजें आप कर लेंगे और आपका प्रीवियस ईयर भी जो है वो रेडी हो जाएगा। एंड इफ यू कम बैक टू योर बैलेंस शीट, यहाँ पे आकर के अगर आप चेक करेंगे तो आपका सारा ही चीज जो अनमैप यहाँ पे आप देख पा रहे थे इनटू येलोज, दैट इज गॉट रिमूव्ड। ठीक है, नाउ आपका पीएनएल भी सेम तरीके से अपडेट हुआ है। आप देख सकते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना है, अदर इनकम का अगर आपके कुछ आपने दिए हैं तो वो कितने हैं, वो सारी चीजें भी यहाँ पे आ चुकी है। सिंस दिस इज नॉट मैप्ड, इसका रीजन ये वही है कि जो अपने वो वाला पार्ट है जो बाइफरकेशंस है वो आपने अभी स्पेसिफाई नहीं किए हुए। जैसे ही आप वो स्पेसिफाई कर देते हैं ये सारी चीजें भी अपडेट हो जाती है। नाउ कमिंग टू नोट्स, नोट्स में अगर आप आकर के देखते हैं कुछ एडिशनल नोट्स अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है, ब्रीफ अबाउट द एंटिटी या कुछ समरी अगर ऑडिटर चाहते हैं कि वो कुछ ऐड करें यहाँ पे, तो यू आर फ्री टू ऐड, यू कैन मेंशन एनीथिंग यू वांट। आई जस्ट टाइप समथिंग ताकि आप देख सके कि यहाँ पे टाइप हो रहा है या नहीं। सी, यू कैन स्पेसिफाई इट ओवर हियर। ओके, इसी के साथ साथ जो आपके बैलेंस शीट जो नोट्स है, नोट्स पे आप देख सकते हैं सारे ही अमाउंट्स जैसे आपने वहां पे मैप किए थे वो सारे यहाँ पे मैप हो गए हैं। सिंस करंट अकाउंट में कुछ भी नहीं है इसलिए करंट अकाउंट इज ब्लैंक ओवर ईयर। और बाकी के नोट्स अगर आप चेक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर द ईयर जो आपने वहां पे सिलेक्ट किया है। एडिशनल नोट्स फॉर बोरोइंग्स, इफ यू वांट टू ऐड एनीथिंग यू आर फ्री टू ऐड। ठीक है, देन डिफर्ड टैक्सेस में अगर कोई अमाउंट आप ऐड करना चाहते हैं कि हाँ इस पर्टिकुलर एक्सपेंस पे कुछ चार्जेस हुए हैं, कुछ एक्सपेंस हुए हैं, तो वो अमाउंट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से आपके सारे नोट्स जो आपने ट्रायल बैलेंस के अकॉर्डिंग अपडेट किया है वो नोट्स यहाँ पे रेडी हो जाते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यू आर फ्री टू ऐड द एडिशंस एंड डिलीशंस ओवर ईयर, तो आप यहाँ पे आकर के चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर प्लांट एंड इक्विपमेंट आई फील that addition of 10,000 should be made। Yeah, so हाँ we have taken net block। हाँ, here in case अगर आप ग्रॉस मेंटेन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि कुछ भी एडिशनल जो आपने ऐड किया है या डिलीशंस कुछ हुए हैं, इफ यू वांट टू ऐड दोज थिंग्स यू कैन ऐड इट ओवर हियर। ठीक है, बट द कंडीशन शुड बी कि आपके वहां पे भी आपने ग्रॉस ब्लॉक ही सिलेक्ट किया होना चाहिए, अदरवाइज वो ऐड नहीं करने देंगे। ठीक है, देन कमिंग टू इक्विटी पार्ट, अगर आपको कुछ ऐड करना है, इन्वेस्टमेंट्स में कुछ ऐड करना है तो वो भी आप यहाँ पे ऐड ऑन कर सकते हैं। जो वैल्यूज आपने वहां पे बुक वैल्यू में दे दी है वो अकॉर्डिंगली यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड नाउ व्हेन यू विल बी टेकिंग अ प्रिंट ऑफ दिस, या अगर इसका आप प्रीव्यू देखेंगे तो जो चीजें ब्लैंक है जहाँ पे कोई अमाउंट नहीं है
बाय डिफॉल्ट इट विल नॉट टेक दैट इनटू कंसिडरेशन, जस्ट ब्लैंक दिखाने का कोई मतलब नहीं होगा, सो दैट इज व्हाई इट वोंट टेक दोस ब्लैंक कॉलम्स इनटू कंसिडरेशन। सिर्फ जिस पे आपने वैल्यूज दी है ओनली दोस पार्ट्स विल बी रिफ्लेक्टिंग इनटू योर प्रीव्यू एंड प्रिंट, ठीक है। इसी तरह से विल गो टू द लास्ट स्टॉक का शीट आई एम येट टू बी शोन, इट इज येट टू बी शोन, लेट मी जस्ट चेक। हाँ, यहाँ पे आपका स्टॉक का शीट है। हियर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर आपने टैली में प्रॉपरली स्टॉक मेंटेन किया है तो वही सेम चीजें यहाँ पे आ जाएगी जो स्टॉक्स आपने मेंटेन किए होंगे। इन केस इफ यू वांट कि नहीं मुझे वो सारी चीजें नहीं चाहिए या कोई चेंजेस करने हैं या यू वांट टू मैन्युअली फिल दिस, तो नो प्रॉब्लम, आप इसको पूरे को इस तरह से सिलेक्ट करके डिलीट भी कर सकते हैं। यू कैन मैप इट अकॉर्डिंगली, जैसा आप चाहते हैं वैसा स्टॉक कैटेगरी वगैरह आप सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एंड इफ यू वांट कि डायरेक्टली सिर्फ मैं नेचर अल्टर कर दूं, वेदर इट इज अ रॉ मटेरियल, वेदर इट इज पैकिंग मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स है, तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। जैसे मेरे केस में दिस वर फिनिश्ड गुड्स, तो मैंने यहाँ पे आकर के फिनिश गुड्स को सिलेक्ट कर लिया है। देन कमिंग टू दिस इज नॉट अ फिनिश्ड गुड, तो मैं वहां पे कॉपी नहीं करूंगी फिनिश्ड गुड्स, आई विल गो टू माई दिस ड्रॉप डाउन एंड आई विल सिलेक्ट कि हाँ ये जो भी चार्जेस है आई वांट टू पुट इट इनटू अदर मटेरियल्स, आई पुट इट इनटू अदर मटेरियल्स। दिस इज माय रॉ मटेरियल, तो मैं इसे रॉ मटेरियल में ले लूंगी। दिस इज अगेन माय रॉ मटेरियल, कंट्रोल सी कंट्रोल भी आप कहीं पे भी कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ये मेरा स्टॉक इन ट्रेड है, आई एम टेकिंग इट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। again this is stock in trade, so I'll bring it into stock in trade. Then this is work in progress, तो यहाँ पे ले लेते हैं work in progress and done। इस तरह से आपका स्टॉक मैप होगा। नाउ सेम आई वांट टू कॉपी इट फ्रॉम द करंट ईयर, मैं क्लिक करूंगी कॉपी मैपिंग फ्रॉम करंट ईयर और करंट ईयर से मैपिंग कॉपी हो जाएगी। सेम गोज फॉर योर ट्रेड पेएबल एंड ट्रेड रिसीवेबल्स, एक ईयर का आप अपडेट कीजिए एंड सेकेंड ईयर पे उसको कॉपी कर लीजिए। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दिस इज नॉन एमएसएमई, अगर मुझे इसे एमएसएमई करना है तो मैं एमएसएमई भी कर सकती हूँ और नॉन एमएसएमई रखना है तो मैं वो भी कर सकती हूँ। इसे सिलेक्ट करके इफ यू वांट कि ये सारी जगह पे ड्रैग हो जाए और पेस्ट हो जाए तो वो भी है, आप वहां से कर सकते हैं। नाउ यू विल कम टू दिस एंड दिस इज ट्रेड पेएबल्स प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे आकर के आपको जो भी सिलेक्ट करना है कि ये दिस इज एमएसएमई या नॉन एमएसएमई, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं और कॉपी करके पेस्ट भी कर सकते हैं सब जगह पे, ठीक है। इसको आई कीप एमएसएमई, तो एमएसएमई भी रख सकते हैं, ठीक है। सेम गोज विथ योर ट्रेड रिसीवेबल्स, यहाँ पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है, कंसिडर्ड गुड, यू कैन सिलेक्ट इट ओवर हियर। डाउटफुल है या जो भी आपके केस में हो वो पर्टिकुलर दिस पर्टिकुलर रिसीवेबल पर्सन इज, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप पार्टी का नेम देख पाएंगे, अगेंस्ट रेफरेंसेस जो उन्होंने सिलेक्ट किए हैं वो देख पाएंगे, एंड पेंडिंग अमाउंट कितना है, लेस देन 6 मंथ्स अगर है या 6 मंथ से ज्यादा है तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑन अकाउंट इफ एनी अमाउंट्स आर देयर दैट विल बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन गिव द क्लासिफिकेशन वेदर टू कीप इट एज सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड या फिर डाउटफुल, ठीक है। सेम गोज विथ योर करंट प्रीवियस ईयर एज वेल, ट्रेड रिसीवेबल्स प्रीवियस ईयर, ठीक है। मैं फटाफट से इसे कंसिडर्ड गुड में कर लेती हूँ एंड विल चेक वेदर इट इज गेटिंग अपडेटेड या नहीं। मैंने इसे कॉपी किया और हियर आई डिड पेस्ट। सेम गोज विद दिस, मैंने यहाँ पे इसे कॉपी किया एंड आई ड्रैग्ड इट एंड पेस्टेड, ठीक है। ये सारा सेव हो गया है। नाउ कमिंग बैक टू आवर नोट्स अगेन, आप चेक कर पाएंगे नोट्स में वो चीजें अपडेट हो जाएगी एज एंड व्हेन यू कीप अपडेटिंग। अगर आप उसे कंसिडर गुड करते हैं तो वो गुड में आ जाएगा, इफ यू कीप इट एज अनकंसिडर दिस अनसिक्योर्ड तो वो अनसिक्योर्ड में रह जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपके नोट्स क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो है जितना भी पार्ट येलो में दिख रहा है उसके लिए यू डू नॉट यू हैवंट गिवन एनी अमाउंट, या फिर आपके जो सिलेक्शंस के लिए ट्रायल बैलेंस में चीजें आई है उसमें वो कंसिडर नहीं हुआ है। जितनी भी चीजें कंसिडर हुई है वो इस तरह से मैप हो जाएगी। और एडिशनल मैपिंग अगर आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ नोट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं तो दैट इज ऑल्सो प्रोवाइडेड कि आप यहाँ पे टाइप कर पाएंगे मैन्युअली, ठीक है। नाउ कमिंग टू द फ्रंट पेज कि हाँ हमने सारी मैपिंग कर ली, नाउ वी आर रेडी, नाउ व्हाट आर वी सपोज टू डू। तो आप अगर चाहते हैं कि करंट शीट प्रिंट हो जाए तो आप यहाँ से प्रिंट करंट क्लिक कर सकते हैं, तो वो करंट शीट जो है बैलेंस शीट है वो प्रिंट हो जाएगी। यहाँ पे आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का जो भी इन्फो आप फिल करेंगे ऑन द फ्रंट पेज फर्स्ट पेज वो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है।
अगर आप प्रिंट करंट करते हैं तो आपका बैलेंस शीट प्रिंट होता है. इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि मुझे इसमें कुछ और ऐड करना है या कुछ इसको कलर करना है, बोल्ड करना है, यू वांट सम एडिशनल थिंग्स टू बी डन, तो इसमें आप हाईलाइटिंग कलर वो सारी चीजें इस पर्टिकुलर शीट में नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए यू आर ऑल्सो प्रोवाइडेड कि आप एक्सपोर्ट कर लीजिए टू MS एक्सेल, और वहां पे आप जाकर के जो एडिशनल फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं विद दी मतलब बॉर्डर्स अगर आप कुछ देना चाहते हैं वहां पे, या फिर यू वांट थिक बॉर्डर्स, या यू वांट कि दिस पर्टिकुलर लाइंस या दिस पर्टिकुलर कॉलम या दिस पर्टिकुलर हेड शुड रिफ्लेक्ट इनटू हाईलाइटेड कलर, या ये वर्ड्स हाईलाइटेड दिखने चाहिए. इस तरह का कोई भी केस अगर है तो आप उसे एक्सपोर्ट टू MS एक्सेल कर सकते हैं फॉर बेटर प्रेजेंटेशन. फिर फॉर प्रिंट ऑल नोट्स जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास में तीन ऑप्शंस आते हैं. इफ यू क्लिक ऑन यस तो ये आपको प्रिंट करके दे, एक्सपोर्ट करके देगा इनटू अ PDF. इफ यू क्लिक ऑन नो तो आपके सामने एक प्रीव्यू आ जाएगा. एंड इफ यू क्लिक ऑन कैंसिल तो एज द वर्ड सेज इट इज कैंसिल. ठीक है, मैं यस करके आपको एक PDF में इसको इंपोर्ट करके, सॉरी, प्रिंट करके दिखा देती हूँ. अनेबल टू सेट द ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी. ओके, ठीक है, पेज सेटअप. ठीक है, यहाँ पे हम आ जाते हैं गो टू, विल गो टू बैलेंस शीट. यस, summary is done, updated mapping. We just check trial balance current year. These things are mapped now. It's updated. Okay. We'll just check हमने balances मैप कर लिए हैं ट्रायल बैलेंस के या नहीं, अदरवाइज. हाँ, ओके, बैलेंसेस मैप नहीं हुए हैं, दैट इज व्हाई इट इज नॉट शोइंग. ठीक. डिफरेंसेस नहीं हो गए हैं. स्टेटस फॉर मैप इज चेंज, राइट. इस तरह से आपको अमाउंट्स को भी मैप करना है, उसके बाद में वो नोट्स पे रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे इनटू द कॉलम्स. जो भी पर्टिकुलर उसका हेड होगा उस हेड में वो रिफ्लेक्ट हो जाएंगे. एंड व्हेन वी आर डन विथ ऑल दी मैपिंग, जब ये पूरा बाइफर्केशन कंप्लीट होगा ना, जैसे फॉर करंट ईयर वी आर डन बट प्रीवियस ईयर वी आर लेफ्ट आउट विथ दी मैपिंग्स. यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो ये सारा जो ट्रेड रिसीवेबल्स का मैपिंग है दैट इज येट टू बी डन. तो ये पार्ट जब आप कंप्लीट कर लेते हैं, ये कंप्लीट करने के बाद में यू कैन एक्सेस टू दिस ऑप्शन ऑफ प्रिंटिंग दी नोट्स. ठीक है, यहाँ पे अगर आप आकर के चेक करते हैं तो आपको प्रिंट करंट भी मिल जाता है, प्रिंट ऑल नोट्स भी मिल जाता है, एक्सपोर्ट भी मिल जाता है, सेव मैपिंग भी मिल जाता है, गो टू इज टू नेविगेट, और यहाँ पे यस एंड क्लियर मैपिंग मिल जाता है. सेव मैपिंग हमने डिस्कस कर लिया, क्लियर मैपिंग हमने डिस्कस कर लिया. ये सारी डिटेल्स आपको फिल कर देनी है. जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई टेक ABC, दिस इज ABC एंटरप्राइजेस के लिए. ABC एंटरप्राइजेस ले लेते हैं. हियर विल टेक कंपनी. Will be providing the name of your designation दे देते हैं. ये सारी डिटेल्स भी आप फिल कर दीजिए, तो जिससे आपका जो बैलेंस शीट है उसके नीचे के जो डिटेल्स हैं वो भी रिफ्लेक्ट हो जाए. आई एम जस्ट गिविंग अ टेम्पररी नंबर ओवर हियर, UDIN if you want to specify, membership number. I'm just clicking कि ये सारी चीजें रिफ्लेक्ट कहाँ पे होती है वो आपको दिख जाए.
सेम गोज योर, यहाँ पे भी प्लेस दे देते हैं मुंबई। Here we are giving the date 1/4/25। यस, ये सारी चीजें देने के बाद में आप अगर बैलेंस शीट में आकर के चेक करते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। एक सेकेंड, लेट इट जस्ट सेव। ABC Enterprises, MRN is UDIN is not specified, I guess. यस, हियर यू कैन चेक, वो अपडेट हो गए हैं। जो भी डिटेल्स आप वहाँ पे फीड करेंगे वो यहाँ पे अपडेट हो जाएंगे। एंड देन आप यहाँ से प्रिंट करंट भी कर सकते हैं इफ यू वांट जस्ट द करंट थिंग टू बी प्रिंटेड, और इफ यू वांट कि सारे नोट्स के साथ प्रिंट हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट कि एक्सेल में एक्सपोर्ट हो जाए तो वो भी आप यहाँ से एक्सेस कर पाएंगे। So this was the thing what the tool has given us, the flexibility जो tool ने दिया है, जो आपका काम reduce किया है, your time it has saved, वो सारी चीजें ये है for non-corporate entities. So the things which were to be discussed from our side are done. We'll also take up the benefits of the same and then we can have a wind up for the same. ठीक है, Here are the benefits। जैसे आप देख सकते हैं कि बिजनेसेस को इसका क्या बेनिफिट है, तो आपको कोई मैनुअल फॉर्मेटिंग नहीं करनी पड़ रही है। इट इज ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव फॉर यू बिकॉज वो टैली का ही एड ऑन है, यू आर नॉट पेइंग सेपरेटली एनी चार्जेस फॉर द सेम। फिर आउटसाइड द प्रोडक्ट पावर, मतलब आपके एक्सेल के जो पावर्स है वो तो एज इट इज आपके पास है ही, उसी के साथ साथ आपको मैक्रो एनेबल्ड ये एक्सेल मिल जाता है, प्रोटेक्टेड शीट मिल जाती है जिसमें आपको कोई भी फॉर्मूलाज एनेबल करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। The thing is directly getting done for you। ठीक है, एम्पावरिंग एमएसएमईज, एमएसएमई भी अगर आपकी कोई पार्टीज है तो वो भी आप वहीं पे सिलेक्ट कर पा रहे हैं एंड अकॉर्डिंगली आपका डेटा रिफ्लेक्ट कर रहा है। सेम बेनिफिट्स आर देयर फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज वेल। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को ये बेनिफिट है कि रेडी टू यूज मैपिंग मिल जाता है। तो जितना टाइम आप एक क्लाइंट पे स्पेंड कर रहे थे, इन दैट टाइम probably now you could make 2 more clients, so 1 का time is given for 3, so it has saved your time, जिससे आपकी क्लाइंट कैपेसिटी बढ़ गई है। वेयर यू कुड जस्ट हैंडल 3 क्लाइंट्स, वहां पे आप 5 कर सकते हो, जहाँ पे 5 थे वहां पे आप 10 कर सकते हो, जहाँ पे 10 थे वहां पे आप 15 एंड 20 एंड इट वुड द नंबर विल गो ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, प्लस आपको स्ट्रेटेजिक अपलिफ्ट हो जाती है और बिल्ड इन ट्रस्ट, तो इट इज बट ऑब्वियसली गोइंग टू बी। ठीक है, कुछ एफएक्यूज है, अगर आप देखना चाहें तो हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के लिए अगर हमने इंपोर्ट करना है, we are not using this is, we'll take the question, can we import previous year figures through the trial balance excel if the SSC was not using tally in the previous year। अगर previous year में tally नहीं भी यूज किया है तो भी जैसे हमने बात किया कि हमने करंट ईयर का मैपिंग करके उसे कॉपी कर लिया है प्रीवियस ईयर में, तो उसी तरह से आप प्रीवियस ईयर को भी मैप कर सकते हैं। यहाँ पे प्रीवियस ईयर की शीट भी सेम तरीके से तैयार हो सकती है। देन can we add additional aging criteria for daters like 0 to 3, 3 to 6 months? जैसे वहां पे अगर आपने देखा तो देवर इनटू करंट एंड नॉन करंट, इसमें अगर आप एडिशनल कुछ मंथ्स का क्राइटेरिया एड ऑन करना चाहते हैं फॉर योर डेटर्स तो करंटली इट इज नॉट, बिकॉज आईसीआई का प्रिस्क्राइब फॉर्मेट डज नॉट अलाउ दैट। ठीक है, if the trial balance was imported and classifications were done but later major changes occur, जैसे कि हमने बात की कि कुछ मेजर चेंजेस होता है तो हमें क्या ये सारा रीडू करना पड़ेगा, तो नो, वी हैव ऑलरेडी गॉट द ऑप्शन टू सेव द मैपिंग, तो वी विल बी सेविंग द मैपिंग जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। फिर उसके बाद में जो बचा हुआ पार्ट है, जो नया एड ऑन हुआ है जिसमें चेंजेस हुए हैं, दैट पार्ट विल बी अगेन री एक्सपोर्टेड फ्रॉम टैली एंड री इम्पोर्टेड इनटू दिस एक्सेल। ठीक है, क्लासिफिकेशन कैन बी डन इनटू टैली टू ऑटो जनरेट बैलेंस शीट एंड पीएनएल, तो ये प्लान रोड मैप में है विच विल बी अवेलेबल सून। कैन वी ऐड एक्स्ट्रा शीट्स? यस, एडिशनल शीट्स आप ऐड कर सकते हैं। एडिशनल वर्किंग्स अगर आपको कुछ करनी है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करना है इसके साथ में, कुछ रेलेवेंट प्रूफ्स, कुछ एविडेंसेस कुछ अटैच करना है, तो वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट्स भी आप एड ऑन कर सकते हैं, इसी शीट में है। फिर हाउ इज द फॉर्मेट
मैनेज्ड व्हेन फिल्टरिंग आउट नील वैल्यू आइटम्स। तो नील वैल्यू आइटम्स जैसे कि हमने बात की थी कि नोट्स में अगर कोई नील वैल्यू आइटम्स है तो वो प्रिंट नहीं होंगे, डायरेक्टली नोट नंबर्स जो है वो ऑटो एडजस्ट हो जाते हैं। जैसे अगर 4 नंबर के नोट में आपने कुछ भी डिटेल्स नहीं दी है तो जो 5 है दैट विल बिकम 4 इनटू योर प्रिंट एंड प्रीव्यू। ओके, then can we use stock value from a valuation report instead of books? So yes, the stock values can be directly used from the stock summary report. Then coming to is rounding off available? तो rounding off available है, basic info sheet में हमने देख ही लिया है। bill to bill is not enabled in tally, how is the 6 months data handle? तो अगर आपने बिल टू बिल मेंटेन नहीं किया है तो जैसे कि हमने बात की थी क्लोजिंग बैलेंसेस जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको रिफ्लेक्ट होगा डेटा, एंड देन यू कैन मैन्युअली हैव द बाइफर्केशंस ओवर हियर इनटू दिस एक्सेल शीट। देन हाउ कैन वी डिजिटली साइन द डॉक्यूमेंट? तो आप इसे एक्सपोर्ट करेंगे एमएस एक्सेल में, वहां पे इनटू पीडीएफ हो जाएगा ये। then you can attach your digital signature and get the digitally signed document. Okay, does it work on AWS cloud? Currently it is not because it supports LibreOffice। जो AWS cloud है उसका LibreOffice होता है तो वहां पे it is not working। तो ये जो tool है this can be used for your local desktop का Tally Prime। okay, आप लेकिन एक्सेल को डाउनलोड कर सकते, मतलब एक्सेल टूल को आप डाउनलोड करके एक्सएमएल में एक्सपोर्ट करके यूज कर सकते हैं। मतलब डेटा यू कैन टेक ऑन लोकल एंड गेट द वर्किंग्स डन, बट एडब्ल्यूएस पे उसे आप एक्सेस नहीं कर पाएंगे। So with this, the thing which was to be explained, the tool which was to be discussed in detail वो हो चुका है हमारी end से। For any further supports if you required, if you require, numbers are shared over here। ये numbers aimtech support numbers है। इसी के साथ साथ में टू एनेबल दिस टूल, इफ यू आर फेसिंग एनी डिफिकल्टी या इसे कहीं पे भी यूज करने में कोई डिफिकल्टी आ रही है, यू कैन रीच आउट टू अस, यू कैन फील फ्री टू रीच आउट टू अस, कोई प्रॉब्लम नहीं है विथ एनी क्वेरीज इफ यू कम अप। नॉट ओनली दिस एनसीई, इसके अलावा भी इफ यू रिक्वायर एनी सपोर्ट इनटू टैली प्राइम, तो वी आर हियर, यू कैन कम टू अस विद द सपोर्ट्स, वी वुड बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। प्लस इन केस इफ योर टीएसएस इज एक्सपायर्ड और आप ये टूल को यूज करना चाहते हैं, यू वांट टू अपग्रेड योर रिलीज फॉर विच टीएसएस बिकम्स मैंडेटरी। अगर आप पहले से 6.6 रिलीज या अबव रिलीज में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इन केस इफ यू आर नॉट इन टू रिलीज 6 एंड यू वांट टू अपग्रेड और आप चाहते हैं कि आपका टीएसएस एक्सपायर है, तो वी ऑल्सो हेल्प यू आउट विद द टीएसएस। आई विल शेयर द रेलेवेंट नंबर्स एज वेल, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे जूम के स्क्रीन पे हम शेयर कर देते हैं। Here onto the chat, we'll just share the numbers. This is my personal number. This is my personal number, and for TSS, if you want, you can directly coordinate to Miss Hina Khan. इनका भी नंबर मैं यहाँ पे शेयर कर देती हूँ। Yes, here you can go with We also do customizations in Tally. So in case अगर आपको कुछ customization की कुछ add-ons की requirement है तो उसके लिए भी आप हमसे contact कर सकते हैं। Support numbers are provided to you. उसी के साथ साथ में I have provided my personal contact as well. NCE को लेकर के कोई भी queries होती है, कहीं पे भी आप stuck हो जाते हैं, if you feel कि you need some assistance, we are here. You can feel free to reach out to us. आपको TSS करवाना है तो उसके लिए भी contact share कर दिया गया है. You can contact Miss Hina Khan for the same. And this was all from our side. Let me just check. Yes, okay. So PPT is also done, practical part is also discussed. So yes, this was all from our side. Now let me just give a formal winding up. So yes, thank you all for joining us today. We hope this session on how to file financial statements of non-corporate entities has given you a clear understanding of the financial reporting and compliance requirements that apply to various non-corporate entities, including sole proprietors, partnership firms, HUFs, and others.
At AIMTech, our mission is to simplify the regulatory processes for individual professionals and small businesses. We are here to support you with the tools, knowledge, and expert advice needed to stay compliant and financially sound. Once again, thank you for your time and participation. We look forward to engaging with you in future webinars. Stay informed, stay compliant, and take control of your finances. Have a great day ahead. Thank you so much for joining. And also would like to add on that on 19th, we are having a webinar on the customization bucket, in which we have included many tools and many add-ons which are relevant for accountants as well as chartered accountants. Many tools which could make your work easy, which could make your work accurate, which could save your time. So please be there. The timings and the details will be shared. In case if you want to know more on the next webinars and our next planned sessions, you can contact on the given numbers, and we will be sharing a detailed information of the same. Thank you so much for joining. Thank you so much, all of you. Thanks a lot.